Good evening students, welcome back to my YouTube channel. I am your Jaswinder Singh Sam once again here for teaching mathematics, and today we will discuss about the syllabus of class 7th, and it is video number 2. In my previous video we discussed about integers, what are integers, its introduction, few questions related with integers from our daily life, like we discussed about temperature, we discussed about height, depth. Okay, we discuss many problems related with our day-to-day life, and today we are going to discuss about few properties of addition and subtraction of integer, that while we are doing addition and subtraction in integers, which property we are following there. First is closure property. Closure property means we have to check that if you are doing addition, okay, in case of integer, and you are doing subtraction, then integers are closed or not. What it means, closed means if you are adding two integers you are adding with the integer, then if you will get same answer, your answer will be in integer, then we can say these are closed. Suppose we have number 2 plus 3, what we will get 5. So these both are integer and we get answer integers. As well, in case of closure under subtraction means if you are subtracting two integers, then you are getting same answer, integer, okay, minus integer, you will get answer integer only. Suppose 2 minus 3 is equal to minus 1, this minus 1 is also integer, and integer we are denoting by beta z plus z. If your answer is z, then they are closed under addition. If z minus z, your answer is z, then we can say they are closed under subtraction. So these are two property related with addition and subtraction. And next is property number 2. Property number 2 is commutative property. Commutative property. That commutative property we will also check in case of addition as well as subtraction. What it means of commutative? Commutative means while we can change the order of the numbers. How? Suppose you are doing addition. You are doing addition in case of integer. Okay. So if you are adding integer with integer, okay, so and you are changing their order. Firstly, suppose we have integer a plus b. If we interchange their order, b plus a, if both side answers are same, then we can say that they are commutative. You take an example of it. If both side you are taking integer z1 z2 and you are interchanging their order, okay, so then what we can say, they are commutative. Take an example. Example is 1 plus 2, its answer is also 3. If you change their order, 2 plus 1 their order, then its answer is also 3. So what we can say, that integers are commutative. Integers are commutative over addition. But in case of addition, it is, these are commutative. Check in case of subtraction also. Okay, in case of subtraction. In case of subtraction, you check that if there are two integers, a minus b is not equal to b minus a. Why? They are not commutative in case of subtraction. Why? Because you take an example, 1 minus 2, its answer is minus 1, but 2 minus 1, its answer will be 1. You check that 1 is minus 1 and that side plus 1. These both are equal, not equal. So then what we can say, integers are not commutative over subtraction. Means if you are subtracting them, कि अगर आप इनकी एडिशन करते हैं तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी. अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी. ओके, सो नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके,
So where we can apply in case of addition only. Next is third property, associative property. As I told you the name, associative property. So this we will also check. Associative property will be implemented in case of three numbers. Suppose number are there, a plus b plus c is equal to a plus b plus c. Means we are doing grouping of last two terms, then grouping of first two terms. मीन्स आपने करना क्या है कि अगर आपके पास तीन टर्म है, ठीक है, अगर आप उनमें से लास्ट वाली दो टर्म का जो एडिशन करते हैं तो फिर जो रिजल्ट आता है उसमें पहली टर्म को ऐड करते हैं। जो इसका रिजल्ट आएगा इन तीनों का, उसका आपने क्या किया, पहले लास्ट वाली तीनों का ग्रुप बनाया, उसको पहले में ऐड किया, फिर उसके बाद पहले दो का ग्रुप बनाया, उसका आंसर निकाला और उसमें तीसरे को ऐड किया। दोनों तरफ आपने देखना है कि इसका आंसर सही आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे भी इंटीजर जार एसोसिएटिव ओवर एडिशन। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं नंबर की। चलिए आप नंबर ले लो -3, -2 एंड -5, -2, -3 एंड -5। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट मीन्स पुट करेंगे यहाँ पर 2 -3 प्लस -5 and this side on the place of a, -2 on the place of b, -3 then -5। ओके बेटा, बिकॉज ये टर्म माइनस के हैं तो हमने ब्रैकेट में लिखना है इनको। जहाँ से क्या आएगा -2, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप। मैंने आपको बॉड मास रूल बताया है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर आइकन में जाकर बॉड मास रूल वाली वीडियो देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले इसमें तीन ब्रैकेट हैं, स्मॉल ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। हमने पहले क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना है। अगर करली ब्रैकेट नहीं है तो नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट चेक करें, इसको ओपन करना है। ठीक है, बॉड मास में होता क्या है, BODMAS। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर जाइए लिंक पर और वीडियो को देखिए। ओके, यहाँ से आ जाएगा -3, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा -5। मैंने आपको बताया था सिंबल कैसे चेंज करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस। मीन्स अगर आप ओपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नेगेटिव आता है, अगर आप सेम वाले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ओके बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या है माइनस। जो आउट वाला क्या हो गया -2, इन वाला क्या हो गया -8। इस ब्रैकेट को फिर ओपन करें, माइनस प्लस क्या आ जाएगा -8, तो आंसर क्या आ जाएगा -10। इस तरफ भी देखिए, इसका जो आंसर आएगा -5 आएगा। आउट वाला क्या है 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे -5, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा -5, इधर भी 10 आ गया। सो बोथ साइड 10 आंसर है। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि इंटीजर्स आर एसोसिएटिव ओवर एडिशन, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव ओवर एडिशन। बेटा ये जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है, इनको हमने यूज़ करना है एक्सरसाइज। ओके, चलिए अब हम लास्ट वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं, मीन्स इसी प्रॉपर्टी को देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। क्योंकि एडिशन में तो हमने देख लिया, ये आंसर आ गया। अगर हम इसको नेगेटिव में अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में ये क्या आएगी, ये सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, इसके लिए हम इसको देखते हैं कि क्या आएगा इसका आंसर। तो a माइनस बी माइनस सी विल नॉट बी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। क्या करेंगे, वही a की जगह पर -2, b जगह पर -3, c की जगह पर -5 पुट करेंगे। पुट करो वैल्यू, लेफ्ट साइड में पुट करेंगे -2 -3 -5, ऐसे आ गया भाई ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, -2 को उसी तरह लिख लिया, इसको सॉल्व करो। -3 आ गया ब्रैकेट में, ये माइनस माइनस क्या होगा +5, इसका आंसर क्या आएगा -2, और यहाँ पर आंसर आएगा इनसाइड +2, बिकॉज यहाँ पर -3 और ये +5 है। तो देखिए इसका आंसर है जो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिला -2 -2, इसका क्या हो गया -4, और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर था -2 -3। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा -2 + 3, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा 5, इसका आएगा 1 आंसर और बाहर वाले का 5। तो देखिए
कि ये दोनों इस तरफ तो 6 आया भाई, इस तरफ -4 आया, ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल, तो हम क्या कह देंगे कि इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो भी इससे हमें क्या पता चल गया कि कम्यूटेटिव भी नहीं होते, एसोसिएटिव भी नहीं होते जब आप हम की क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर आप सिंपली उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ओके, तो आपके पास वो क्या हो जाते हैं, वो कम्यूटेटिव भी हो जाते हैं, वो एसोसिएटिव भी हो जाते हैं, वो क्लोजर भी हो जाते हैं। क्लोजर तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों में ही हो जाते हैं। मैंने आपको ये बताया है, वीडियो को पॉज करके या प्रीवियस में जाकर आप देख सकते हैं। और लास्ट वाला आज का एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी भी कौन सी होती है? आइडेंटिटी का मतलब ऐसी वैल्यू जिसको हम अगर पुट करें तो जो नंबर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे इंटीजर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। 0 को भी आप किसी भी इंटीजर में ऐड करो, -8 + 0 -8, आंसर में कोई चेंज आया, नहीं चेंज आया। 27 + 0 आंसर क्या आएगा, 27, तो भाई कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये 0 को क्या बोलते हैं, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर। हमने क्या करना है, अ पेयर ऑफ इंटीजर जो लिखना है जिसका सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए 7 -7। सो देखिए मैं इसको आपको इजी मेथड के साथ बताता हूँ कि डैश लो, 2 डैश लो भाई, और इनका जो सम होना चाहिए 7। तो हम इसकी 3 एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी 3 एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर लीजिए -3 एंड -4, दोनों का आंसर क्या आएगा भाई, 7 आ जाएगा। कैसे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे, पहला -3, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4, एक तो है भी -3, एक है -4, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो हम इनका क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इनको मीन से ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर एक नेचर वाले आदमी हैं तो वो इकट्ठे रह सकते हैं। इसी तरह सिंबल का अगर एक नेचर वाले होंगे तो वो हम क्या कर देंगे, उनको कलेक्ट कर देंगे। तो इसकी और एग्जाम्पल ले लो भी, -1 एंड -6 ले लो, ठीक है, और -2 एंड -5 ले लो भी, ठीक है। आप इसमें एक नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं, जैसे एक 2 ले लो भी, एक -9 ले लो, इसका आंसर भी क्या आएगा, -7 आएगा। कैसे आएगा, 2 प्लस का है, यहाँ पर प्लस साइन है और इधर माइनस है, माइनस प्लस मैंने आपको बताया था ऊपर, इधर कि अगर हम माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 - 9, 2 प्लस का है, 9 माइनस का है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सेम सिंबल वाले हों तो हम उनको ऐड कर देते हैं, अगर डिफरेंट सिंबल वाले हों तो उनका क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सो 9 - 2 कितना आ जाएगा, 7। तो इसका आंसर आ गया -7। सो इसका जो बी पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, डिफरेंस देखना है भाई, डिफरेंस कितना होना चाहिए, -10 होना चाहिए। उसी तरह आप कर लो, पहले वाला नंबर ले लो नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव ले लो, क्योंकि वो देखिए यहाँ पर ब्लैंक है, ब्लैंक इसमें हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है कि आंसर आना चाहिए 10। -5 ले लिया, -5 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -10 है, अगर आपने पॉजिटिव लिया तो 0 हो जाएगा। सो -5 भी ले लो, -5 नेगेटिव लिया हमने, सो +5, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -10। -1 और -9 भी ले सकते हैं, इसका आंसर भी -10 है। ओके, हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, -11 + 1, तो क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, तो आंसर क्या आएगा, -10। वेरी इजी है। तो अगला क्या आएगा अभी, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू 0। इसमें तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये आपके लिए आपने करना है। कोई 2 इंटीजर लेने हैं जिनका ऐड करे पर आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है पहली, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। हमने यहाँ पर क्या करना है, नेगेटिव इंटीजर चूज करने हैं, नेगेटिव इंटीजर तो जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए 8। तो देखिए नेगेटिव इंटीजर कोई भी आप यहाँ पर लीजिए, नेगेटिव इंटीजर कौन सा ले सकते हैं, -1 ले लो, इधर ले लो -9। जब आप इसको ओपन करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ठीक है, ये आ जाएगा -1, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, 9 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो क्या होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है बेटा, आपने समझना इस चीज़ को है कि आपने नेगेटिव इंटीजर लेने हैं दोनों, -1 ले लिया और डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन, उनकी सब्ट्रैक्शन देखनी है। ठीक है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। एक एग्जाम्पल इसकी और ले लो,
ए पार्ट की, क्योंकि बेटा आपने अच्छे से इनके सिंबल को चेंज करना जो वो सीखना है, उससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो हाफ सॉल्व हो जाती है। ठीक है, आपको आइडियाज आने लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, उससे हमने एक दूसरा नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, लो एग्जाम्पल -11 ले लो और इधर ले लो आप -19। ठीक है, सो ये होगा ये -11, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 19। सो 19 प्लस का है, 11 का माइनस का है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, पता चल गया। अब इसका बी पार्ट में हमने क्या करना है, अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हो जो सम इज -5। एक आपने क्या करना है, नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक आपने लेना है पॉजिटिव इंटीजर। दोनों का सम आपके पास क्या, सम मीन प्लस, दोनों का सम आपके पास क्या आना चाहिए, -5। आप डिसाइड कर लो -5। यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यहाँ पर नेगेटिव, देख लो भाई नेगेटिव बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी मिल रही है। तो -9 एंड 4 ले सकते हैं। ठीक है, -11 एंड 7 ले सकते हैं, 7 नहीं 6। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो -7 एंड 2 ले सकते हैं। तो ये सभी का आंसर क्या आ जाएगा, -5 आएगा। इसी तरह से आपने वैल्यू अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट करनी है। सी पार्ट आपके लिए है भाई। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, इन कोई टीम स्कोर, टीम है एक ए, उसकी वैल्यू क्या आती है, उसके स्कोर कितने आते हैं, -40 आता है, 10 आता है, 0 आता है। टीम बी है एक दूसरी, उसके स्कोर कितने आते हैं, 10 आता है, 0 आता है, -40 आता है। ठीक है, 3 सक्सेसिव मीन जो साथ साथ वाले। ओके, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, जो एक के बाद एक होता है, एक के बाद दूसरा। ठीक है, कंटिन्यूस। सो अब इनके 3 राउंड हो गए, पहला राउंड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब अपने क्वेश्चन क्या बोला कि इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 एंड 0, टीम बी स्कोर्ड 10, 0 एंड -40। ठीक है, इन 3 सक्सेसिव राउंड्स विच टीम स्कोर्ड मोर कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। देखिए आपने इसमें क्या करना है, इनको देखना है कि आप इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। बस मैंने आपको बताया भी, हमने प्रॉपर्टीज की हुआ है। पहले प्रॉपर्टी कौन सी की है, प्रॉपर्टी हमने कम्यूटेटिव भी की, ठीक है, क्लोजर भी की और एसोसिएटिव भी की। हमने इनमें पढ़ा कि जब हम ऐड करते हैं तो किसी भी ऑर्डर में ऐड तो कर सकते हैं मगर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम जहाँ पर क्या करना है, इनका एडिशन करना है। एडिशन हम इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे तो इसका स्कोर आएगा, देखो जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसका स्कोर आ गया -40 + 10 + 0, आंसर क्या आ गया, -30। इसको भी करो, 10 आ गया, 0 आ गया, -40 आ गया। ठीक है भाई, ये 10 प्लस का है, ये 40 माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। और सिंबल कौन सा आएगा, सिंबल आएगा जो बड़े वाली टर्म है। बड़े वाली टर्म कौन सी है, नेगेटिव है, तो ये आंसर कौन सा आएगा, -30। तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, -30, 30। तो दोनों का स्कोर क्या हो गया भाई, सेम हो गया, दोनों ने इक्वली स्कोर किया ना। तो आपके पास मैंने आपको पहले बताया कि हम इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी तो हमने देखा कि हम उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो बोथ हैव स्कोर्ड सेम आंसर, सो व्हाट वी कैन से सेम स्कोर एंड यस। यस क्यों कहा भाई, क्योंकि उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे कि विच टीम स्कोर्ड मोर, टीम दोनों ने सेम स्कोर किया, तो उन्होंने पूछा कि भी उनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। यस, हम उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन था। आज का लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आप फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं और इनको हमने प्रॉपर्टीज के बेस्ड पर फिल करना है। ये देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, उन्होंने ब्लैंक दी हुई है और पहले वाली में इसको कंपेयर करें इस प्रॉपर्टी के साथ, a + b = b + a। तो यहाँ पर मिसिंग क्या है, जहाँ पर a की वैल्यू, ये a है, ये b है, तो ये b हो गया, ये a रह गया। a की जगह पर क्या आएगा हमारे पास, -5। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया -53 + डैश = -53। मैंने आपको बोला था कि एडिटिव आइडेंटिटी, ये देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, आई वांट टू रिमाइंड यू दैट एडिटिव आइडेंटिटी इधर 0, क्योंकि 0 को आप किसी भी इंटीजर में ऐड करें तो आपको आंसर क्या मिलेगा भाई, सेम इंटीजर ही मिलेगा, तो 0 यहाँ पर आएगा। थर्ड ब्लैंक होगी 17 + डैश = 0। तो अब आपने देखना है कि किस नंबर को इसमें ऐड करें कि आंसर 0 आए, इसका अपोजिट। ठीक है, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, 17 का अपोजिट -17। फोर्थ में देखिए 13 + -21। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ से शुरू होता है
13 है, फिर प्लस सिंबल है, फिर ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में 21 है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर 13, फिर -12, फिर -7। तो अब आप इसको कंपेयर करेंगे किस, इसको हम प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करेंगे। आई वांट टू रिमाइंड यू प्रॉपर्टी नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पर क्या आया, ए आ गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें देखिए आप, इन्होंने क्या किया, a प्लस बी दिया, c मिसिंग है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ये एक ब्रैकेट में है, तो इधर क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर कीजिए, देखिए कि ये आपका राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो मिसिंग क्या है, c मिसिंग है। आप देखिए a तो हो गया 13 दोनों साइड है, b हो गया -12, नहीं -12, इधर भी -12 भी आएगा, मिस्टेक हो गई थी लिखने में, -12 भी आ गया, तो क्या रह गया भाई 7 रह गया, इधर तो है इधर नहीं है, तो इसको लिखिए -7, ये हो गया। अगर आपने करना है फिफ्थ पार्ट भी सेम है, तो उसमें क्या आएगा आंसर, इसमें उन्होंने बेटा क्या किया, सिर्फ आपको पजल करने के लिए राइट वाली जो जिस प्रॉपर्टी का क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में लिख दिया, राइट वाला लेफ्ट में लिख दिया। जब आपको पता ही है कि एसोसिएटिव है, तो हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, पहले दो का ग्रुप बना के थर्ड ऐड कर सकते हैं, लास्ट वाले दो को ग्रुप बना के उसमें फर्स्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ हुआ। तो अब इसमें देखिए -4 है, -15 है, -13 है, तो इधर देखिए -4 भी है, +15 भी है, एक टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -3 आएगा बेटा। सो इट वाज एक्सरसाइज 1.2. So next we will discuss in next video. Thanks for watching my video. Keep sharing and subscribe my channel. Share with your friends from your community. Share with your relatives also. Thanks for watching. God bless you.